somehow they were getting a place to hide. मतलब ट्रीज का जब बहुत ज्यादा झुंड होता है ना, बहुत, तो पीछे उन दरख्तों के अंदर से कोई भी बीच में से गुजर के आ रहा हो आपको पता नहीं चलेगा. somebody can hide behind the tree ना. तो अब कुछ कंपेनियंस को ऐसा लगता था कि अगर हम ये ट्रीज काट दें सीज के दौरान, क्योंकि उन्होंने तो सीज किया हुआ है, तो अगर बनु नजीर बाहर निकलना चाहेंगे या पीछे से हमें अटैक करना चाहेंगे या बनु कुरैजा हम पे अटैम्प्ट करना चाहें फ्रॉम द बैक साइड, तो दे कैन टेक द शेल्टर बिहाइंड द ट्री. तो हम ट्रीज को काट देते. लेकिन कुछ मुसलमान कह रहे थे कि हम वैसे ही विजिलेंट रहते हैं, कोई हमें पीछे से अटैक ना करे, लेकिन हम ट्रीज नहीं काटते क्योंकि ट्रीज आर बेसिकली रिसोर्स. क्योंकि ये बनु नजीर चले जाएंगे तो ट्रीज विल बी आर्स एंड वी कुड डिस्ट्रीब्यूट देम एज पर द स्पॉइल्स ऑफ वॉर. तो ये तो हमें बेनिफिट देंगे बाद में ट्रीज, तो ट्रीज काटना ठीक नहीं है. But teacher, how are they supposed to distribute the trees? Sorry? How do they distribute the trees? मतलब two trees belong to one person, one tree to one person. Like a tree means like the fruit of the tree. Like they will be taking this tree, ownership of the tree, and then when the fruit will come, they will be buying it and selling it, and they are working on that because their main trade was that, na? Especially Ansar. Ansar were farmers. तो अंसार को तो ये फायदा देती बहुत ज्यादा ट्रीज वाली बात, और वैसे भी महाजिन को भी फायदा देती क्योंकि ट्रीज पर अगर फ्रूट आ रहा है तो इट इज वैल्यूएबल. So one tree for the one person, two tree, other tree for the other person, like this. The dates. Yes. So they could do it. अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अब आमना बात समझ में आ गई ट्रीज वाली. फिर अल्लाह ताला ने मतलब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं समझ में आ रहा था कि हाउ टू टेक द डिसीजन अबाउट इट, बिकॉज पीपल वर हैविंग द डिफरेंसेस इन द ओपिनियन. कुछ कह रहे थे काटो, कुछ नहीं काटो, लाइक दे वर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर. So Prophet ﷺ was somehow upset. Then Allah revealed verses of Surah Al-Hashr, verse number 5 of Surah Al-Hashr, in which Allah said it is okay if they are cutting the tree, and it is still okay if they are not cutting. मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दरख्त काटें या ना काटें, because the main intention of both of them is same. दोनों का इंटेंशन अच्छा है ना. None of them having a bad intention for the trees. अगर कोई ये सोच रहा है कि यार ट्रीज हमारे लिए बच जाएंगे तो अच्छी बात है, हम लोग इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. और अगर किसी को लगता है कि नहीं ट्रीज जो है वो इंटैक्ट रहने चाहिए क्योंकि बाद में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो भी सही है. दोनों चीजें That's the same. That means the same thing. No, they said that one group was saying that we should not cut the tree because they are asset. Some were saying that we should cut the tree because we cut the trees because in this way we will be more safer. ठीक है, तो they are both different opinion ना. मैंने उस वक्त देखा, I said it wrong. Valid. Yes. So in both of the ways they both were thinking about the benefit of Muslims. दोनों ग्रुप्स मुसलमानों के बेनिफिट का सोच रहे थे. none of them was thinking for taking it personally. अब ये चीज हो गई. अल्लाह ताला ने जब वर्सेस नाजिल की सूरह अल-हश्र की वर्स नंबर 5 बता दिया, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was calm down now. Now Banu Nazir had no other way except leaving. After 10 days, Prophet sallallahu alaihi wasallam, when Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them warning, they left. And this time, like they were leaving with singing song and they were drumming and they were like dancing and they were giving the open threat to the Muslim that we will return back and Medina belongs to us and one day it would be ours and we will kick you off from here and all. But Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the Muslims to keep calm, to be calm down and to not answer to them. उनको जवाब ना दें, कुछ ना करें, खामोश रहें, क्योंकि they wanted to instigate somehow. क्योंकि वो इस वक्त जिस कंडीशन में थे, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो कहते हैं ना कि आपकी दुम पे किसी ने पैर रखा हुआ हो तो फिर तो आप तड़पेंगे ना. तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knew that they were somehow like in the under stress, they are under stress. So Muslims should keep the patience and should not say anything to them. अब वो जब चले गए, they left, जो चीजें वो ले जा सकते थे ले गए, but they left behind what? पीछे उन्होंने क्या छोड़ दिया? Around 70 उन्होंने वो छोड़ दी armors, around 70 armors, gold armors Muslims got. फिर उसके बाद 340 जो है वो उन्होंने swords छोड़ दी पीछे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए. और इसके अलावा और उन्होंने क्या 70 हेलमेट्स दे आल्सो लेफ्ट. और उसके अलावा मल्टीपल ट्रीज एंड उसके बाद जो है वो मल्टीपल ट्रीज प्लस देयर फोर्ट्रेस आल्सो, क्योंकि फोर्ट्रेस भी साथ तो नहीं ले जा सकते थे ना. नाउ इट वाज ऑल फॉर द मुस्लिम्स. जितनी चीजें ये छोड़ के गए ये सब मुसलमानों के लिए रह गई पीछे. एंड दे लेफ्ट, वो चले गए. एंड दे लेफ्ट, दे वेंट वेयर? एनी आइडिया कहां गए होंगे? Khaybar. यस, खैबर.
Maximum not of the them one went in, to Khyber. but not, Maximum of not them the, went to, हाँ but not the one in Pakistan. ना, पाकिस्तान वाला खैबर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, खैबर गए, और खैबर के अलावा जो है वो, उसके अलावा सम ऑफ देम वेंट टू सीरिया आल्सो, कुछ ज्यूज उस वक्त सीरिया भी चले गए थे, राइट। तो दे मतलब वो क्या हो गया, वो स्प्लिटेड इनटू पार्ट्स हो गए, दे वेंट देयर एंड दे स्टार्टेड लिविंग देयर। अब बनु नजीर का तो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया। अब बैटल ऑफ ओहद जब हुई थी ना बेटा, तो बैटल ऑफ ओहद में एक और चीज हुई थी, तो क्या हुई थी कि कुरैश Wait, गेव एन ओपन चैलेंज। हाँ teacher. हाँ Yes, remember after the battle over just before the Quraysh left, they challenged the Muslims back at यस Badr. यस, उन्होंने मुसलमानों को व्हेन दे वर लीविंग ओहद, द माउंटेन ऑफ ओहद ना, जब जा रहे थे कुरैश, तो दे गेव एन ओपन चैलेंज टू द मुस्लिम्स कि लेट्स मीट नेक्स्ट ईयर एट वंस अगेन एट द सेम प्लेस ऑफ बदर। यानी अभी तो हमने बदर का बदला पूरा नहीं किया, उन्होंने कहा ये ओहद में तुम हार भी गए हो, तब भी हमारा रिवेंज कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर दैट दे गेव एन I ओपन thought that चैलेंज, was फॉर दैट दे गेव एन ओपन चैलेंज। जहरा ने भी ज्वाइन नहीं किया, वापस क्यों नहीं ज्वाइन किया? एक मिनट मुझे मैसेज करने दो। तो क्या किया, प्रॉफिट सल्लम को जो ओपन चैलेंज देके गए थे, वो उस ओपन चैलेंज को प्रॉफिट सल्लम ने पॉजिटिवली लिया, एंड प्रॉफिट सल्लम प्रोसीडेड टुवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ बदर। हाँ, उन्होंने प्रॉफिट सल्लम को क्या कहा कि प्रॉफिट सल्लम को लगा ऐसा कि वो चैलेंज करके गए, तो अब देखो दिस वाज द बेस्ट टाइम टू रीगेन देयर प्रेस्टीज बैक, क्योंकि अगर मुसलमान बदर पे ना जाते वापस इस साल, तो समहाउ जो लोग पहले से सोच रहे हैं कि मुस्लिम्स आर समहाउ वीक एंड दे डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट द कुरैश और एनी अदर ट्राइब, इट वुड बी स्ट्रॉन्गर, देयर दिस मिसकंसेप्शन वुड बी स्ट्रॉन्गर। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदर्ड अराउंड 1500 सोल्जर्स। कितने? 1500 soldiers, and Prophet sallallahu alaihi wasallam proceeded towards the plains of Badr, जहां पर पहले बदर की लड़ाई हुई थी ना, उसी जगह पर proceeded towards Badr। अब Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed 8 days over there, 8 दिन तक वहां पर रुके रहे। अब वहां से जो कुरैश की साइड है, अबू सुफियान ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन आर्मी। अबू सुफियान ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट आर्मी प्रिपेयर की, अराउंड 5000 warriors, around 5000 warriors, and उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5000 वॉरियर्स को लेकर दे केम, दे स्टार्टेड कमिंग, दे लेफ्ट मक्का, बट दे डिड नॉट प्रोसीड टुवर्ड्स बदर, एंड फ्रॉम द वे ऑन द वे दे रिटर्न बैक। अब इसके पीछे क्या रीजंस था कुछ पता नहीं चला। इसको अल्लाह ताला कुरान के अंदर बाद में डिस्क्राइब कर रहा है कि अल्लाह पुट द फियर ऑफ यू इन देयर हार्ट्स। अल्लाह ने क्या किया, आपका डर उनके दिलों में डाल दिया कि दे रिटर्न बैक। क्योंकि देखो मुस्लिम्स आर स्टिल, अगर हम नंबर देखते हैं, मुस्लिम्स आर, हाउ मेनी मुस्लिम्स आर देयर? 1500. 1500 and 1005. they were 5000, तो अभी भी वो ज्यादा है मुसलमानों से, but somehow Allah put the fear of the Muslims into their hearts and they returned back। वो वापस नहीं आए। Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed for the 8 days there, but when they did not come, Prophet sallallahu alaihi wasallam went back to Medina। but ये जो went back हुआ, that was somehow goosebumps for all other tribes also। और ये कुरैश का वापस जाना, that was also a sort of once again in the benefit of the Muslims, क्योंकि कुरैश ने आर्मी प्रिपेयर की, आधे रास्ते तक आए और वापस चले गए। It gave an impression to the whole Arab community that Quraysh were scared of the Muslims। ऐसा था या नहीं था? हाँ, बताइए बेटा, सिर्फ मनाइल सुन रही है और कोई नहीं सुन रहा? Quraysh had to face
द कॉन्सिक्वेंसेस, उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े समहाउ, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसका बदला लेने के लिए फिर बैटल ऑफ ट्रेंच आगे ले ली। उनको लगा कि ये भी एक तरह का वो था, तो इसी की वजह से फिर बैटल ऑफ ट्रेंच नेक्स्ट ईयर हुई। अब एक और चीज हुई 4th ईयर ऑफ हिजरा में, वो क्या थी? दैट वाज द प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल। लास्ट चीज जो हुई वो क्या थी? प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल जो थी उसको पहले मक्का में एक क्या आया था, कमांड आई थी कि एल्कोहल हैड बेनिफिट्स बट its harms are more than its benefits. These were the verses which were revealed first time about alcohol in Makkah. जो खास तौर पे जो पहली वर्सेस आई थी ना अल्कोहल के बारे में, वो ये आई थी कि अल्कोहल माइट बी बेनिफिशियल, बिकॉज वो उन लोगों को लगता था कि अल्कोहल के अंदर बेनिफिट भी हैं, और मतलब ये आपको जो है वो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉर्ट आउट हो जाता है, आपका डिप्रेशन एंजाइटी चला जाता है, बहुत सारे उनको लगता था कि फायदे हैं इसमें। तो अल्लाह ने पहले सिर्फ इतना कहा कि मे बी एल्कोहल वुड हैव सम बेनिफिट्स बट इट्स हार्म इज मोर देन इट्स बेनिफिट्स। पहले ये वर्सेस आई, अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में, तो मुसलमानों ने समहाउ उसको कम कर दिया। फिर दूसरी वर्सेस नाज़िल हुई, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, डू नॉट गो नियर टू द प्रेयर व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड। अब यहाँ पर अल्लाह ने नमाज पढ़ने से मना कर दिया जब तक आप उस इंटॉक्सिकेशन के अंडर हैं। व्हेन यू आर ड्रिंकिंग एल्कोहल, नाउ यू डू नॉट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर which words you are pronouncing. So Allah stopped the Muslims to go near to the prayer when they are intoxicated because it is najis also. Najis मतलब impure, यानी ये इम्प्योर चीज है, और जब तक उस इम्प्योर चीज का आपकी बॉडी के ऊपर असर है, यू आर नॉट सपोज टू ऑफर द प्रेयर। आपको कज़ा पढ़नी पड़ेगी, आप नमाज नहीं पढ़ सकते अल्कोहल पी के, ठीक है। लेकिन अब इन मदीना इन द 4th ईयर ऑफ हिजरा अल्लाह रिवील्ड द प्रॉपर वर्सेस दैट अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड। खत्म कहानी। अब अल्कोहल का जो है कोई सीन नहीं है। अब एक वो थे एक कंपेनियन जिनका नाम अभी आपने सुना भी है बहुत दफा, अब्दुर्रहमान बिन औफ। ही वाज वेरी रिच कंपेनियन। उनके बारे में आता है कि उनके पास कुछ स्टॉक था, क्योंकि तब तक अल्कोहल की प्रोहिबिशन नहीं आई थी ना, तो खुद तो नहीं पीते थे, बट दे वर वर्किंग ऑन दैट, दे वर डूइंग ट्रेड ऑन दैट। तो उनको जब पता चला कि अल्लाह ने अल्कोहल को नॉट ओनली प्रोहिबिटेड करार दे दिया है, बल्कि अल्लाह ने ये भी कह दिया है कि यू आर नॉट सपोज टू वर्क ऑन अल्कोहल, यू कैन नॉट पिक इट अप, यू कैन नॉट अनलोड और डाउनलोड इट, मतलब आप उसके वजन को नीचे उतारना चढ़ाना, कोई भी ऐसा काम करना अल्कोहल के ऊपर जिसके बदले आपको पैसे मिलते हो, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। व्हेन दीज वर्सेस रिवील्ड, उन्होंने ही थ्रू ऑल द अल्कोहल इन द स्ट्रीट्स ऑफ मदीना, कि कितने दिन तक अल्कोहल की स्मेल आती रहती थी मदीना के अंदर से वाइन की, फॉर मेनी डेज, क्योंकि उन्होंने सब बहा दी। उन्होंने उसको कुरैश को भी नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसका, ही वेस्टेड ऑल ऑफ देम, सारा स्टॉक उन्होंने उसका बहा के उसको खत्म कर दिया। तो दैट वाज देयर तकवा। वरना हम लोग कहते हैं कि यार अभी वर्सेस आई हैं और मैं तो खरीद चुका इतना बड़ा स्टॉक, मेरा तो पैसे जाए हो जाएंगे। बट ही डिड नॉट थिंक फॉर अ सिंगल टाइम दैट के इसके बारे में कुछ सोचना भी है, राइट? समझ में आ गया बेटा 4th ईयर ऑफ हिजरा? एवरीथिंग इज क्लियर? अब इंशाल्लाह हम मूव करेंगे बैटल ऑफ टेंच की तरफ। यस एवरीवन, आई नीड आंसर बेटा। मैं आज आप लोगों को बैटल ऑफ बदर का वो भेजती हूँ, मार्किंग बैटल ऑफ बदर की भेजती हूँ, साथ में बी पार्ट भी, वो भी आपने करना है, और उसके साथ साथ टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब मंडे को हमारी क्लास है और ट्यूसडे को फिर हमारा टेस्ट है। बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ बदर का तो असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट तो करना है। तुमने कर लिया मनाहिल? यू हैव डन इट? इन लोगों को करना है, बाकी लोगों को। ये इतनी सुस्त चल रही है ना सारियां। सिमरा बेटा मुझे बैटल ऑफ बदर में आज ही भेज रही हूँ इंशाल्लाह, आज ही मुझे उसका आंसर चाहिए। सिमरा, ठीक है। जहरा, आमना, आमना तुमने मुझे पिछले क्वेश्चन भी नहीं भिजवाया बेटा, मुझे जहरा ने और उसने सिमरा ने पिछले क्वेश्चन भिजवा दिए। सारे आधे आधे करके रखे हुए कंप्लीट इस वजह से नहीं कर पाई क्योंकि ईओटीटीज चल रहे थे, अभी थर्सडे को खत्म हुए। क्योंकि देखो ये तुम्हारे अपने बेनिफिट के लिए है, मुझे तो बल्कि चेक करना पड़ता है मेरे लिए, मुझे क्या फायदा है इसका। लेकिन क्या होता है कि तुम लोगों की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, यू विल नॉट बी प्रूविंग दैट। फिर मुझे पता आई कैसे नो, चलेगा? लेकिन फीडबैक जब तक नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा? जी फीडबैक मैं देना आपको बहुत जरूरी है। कर दूंगी। अभी मैं फीडबैक देती हूँ, अभी मैंने सिमरा को फीडबैक दिया, फायदा हुआ नहीं हुआ बेटा? जी मिस हुआ। हुआ है ना फायदा? जहरा तुम्हें फायदा हुआ नहीं हुआ? उसका तो माइक ही नहीं काम कर रहा। लेकिन बहरहाल देखो पता चल जाता है ना कि वेयर यू आर मिस्टेकिंग, कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये सब चीजें यू विल डू इट। ठीक है जी मनाइल, डिड यू गेट द बेनिफिट ऑफ आफ्टर द फीडबैक बेटा? यस
Yes, so listen carefully when I give the feedback और फिर उसको add on कर दिया करो बेटा। उसी वक्त जो आपने लिखा हुआ था ना अपना आंसर, उसके अंदर मेरे पॉइंट्स को सुन करना add on कर दिया करो, तब फीडबैक का फायदा भी होगा। अगर तुम लोग सिर्फ सुन के सोचोगे अच्छा हाँ मैं नेक्स्ट टाइम ऐड कर दूंगी, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट बी रिमेम्बरिंग इट, याद थोड़ी रहेगा वो। उसी वक्त जब फीडबैक सुनो उसको ऐड ऑन करते जाओ, अच्छा ये पॉइंट मिस्टेक एक्स्ट्रा बताया, ये एक्स्ट्रा बताया, ये एक्स्ट्रा बताया, आई विल ऐड ऑन। बेशक मुझे दोबारा मत भेजो, लेकिन एटलीस्ट अपने पास तो लिख के रखो, so that you will be cleared about it. ठीक है, ठीक है बेटा, जी मिस। चलो फिर I इंशाल्लाह see you I on used Monday. to take 2 or हाँ, 3 weeks to do. I क्या? used to take 2 or 3 weeks to do one assignment. Now you are I doing am it very the fast, one माशाल्लाह. doing- Now I am the only one who is doing my Yes, assignment. बिल्कुल up to dated, you are working up to dated, बिल्कुल साथ साथ चल रही हो मेरे, you are working with me and I am so happy for that. अल्हम्दुलिल्लाह, and keep it up, okay? आमना और सिमला दोनों मुझे देना बेटा फिर करके, सही है? चलो, ओके मिस। okay बेटा, अल्लाह take हाफिज। care then. On Monday inshallah. Okay, Allah ओके Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, beta. अल्लाह Allah Hafiz. हाफिज। Allah Hafiz.